पहले मानो आदमी ड्रग्स का सेवन करता है, ड्रग्स खाता है शुरू में, बाद में ड्रग्स शायद आदमी को खाना शुरू कर देती है। इनके सेवन से बचकर रहने का प्रयास रखो। इस प्रकार के छोटे छोटे हितकर नियम ये अनुव्रत आचार संहिता के अंतर्गत आते हैं। हमारा मुंबई में आना हुआ और यह वर्ष जो अनुव्रत की बात मैंने अनुव्रत शब्द काम में लिया, यह एक हमारा कार्यक्रम है अनुव्रत आंदोलन का, जो हमारे परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने आगे बढ़ाया था, चलाया था। नशा मुक्ति एक अनुव्रत का कार्यक्रम है और उसके साथ यह ड्रग्स निवारण का कार्यक्रम तो विशेषतया मुंबई के हमारे इस प्रवास में थोड़ा बलवान बना है। ड्रग्स बहुत बड़ी समस्या है, न केवल उड़ता पंजाब उड़ता जा रहा है, महाराष्ट्र में भी, देश में भी और इंटरनेशनल ये समस्या बन गया है कि जो यूथ होता है 15 से 25 साल की उम्र का जो व्यक्ति होता है, जब उसका करियर बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है, उस वक्त वो ड्रग्स की चपेट में आ जाता है। चाहे वो पीयर प्रेशर हो, चाहे वो स्टडी का प्रेशर हो, चाहे वो करियर का प्रेशर हो, चाहे वो जस्ट एक हाई या एक अलग दुनिया में जाने का हो। Addiction can be very bad. It destroys the personality. It destroys interpersonal relationships. It can wreck the family. So religion, I think, is another important factor which should be stressed at an early age in life so that the child learns good spiritual value. देखिए, बच्चे जो जाते हैं, बहुत सारे हम लोग फिल्म में भी देखते हैं, सब है, दे थिंक कि उसको उनको एक हाई होता है, कोई भी नशा, एनी इंटॉक्सिकेशन, दे फील कि देयर इज सम हाई, सम किक। बट मैं यहाँ एक बोलना चाहूँगा, मानसिक स्तर पर जो हमारे साधु संत गुरु मुनि ऋषि भारतवर्ष में है, दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म to a spiritual high. Okay, it's nice to say that addicts can be de-addicted, but believe me as a neurologist, it is extremely difficult. So the second lesson is prevention is far better than cure. Allopathic medicine is body medicine, but this body is alive due to an energy about which allopathy has very little, or I dare say no knowledge. We've not studied it. All of us allopaths work on body medicine. There's a little movement today to body-mind medicine. And you will hear this word again and again, that the mind controls the body. But there is something well beyond the mind, which is the soul. And we're very slowly in allopathy migrating from body medicine to body-mind medicine. And someday we will migrate to soul medicine. Now, when you look at India and Indian culture, and you see this movement of allopathy, you can't help wonder, all this was here. What happened to it? I mean, we agreed not to pay too much attention to the soul medicine that existed with us all these years. And that is where I think the huge role of spirituality in human well-being comes up. मैं एडिक्टेड हूं, मैं कहता हूं मैं एडिक्टेड हूं, लेकिन एडिक्टेड हूं फिटनेस से, मैं एडिक्टेड हूं अपने काम से, मैं एडिक्टेड हूं स्पिरिचुअलिटी से, मैं एडिक्टेड हूं स्पोर्ट से, क्योंकि मेरा मानना है 100% ये मानना दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इन चीज़ों से हम एडिक्टेड रहेंगे तो हमें ड्रग्स की आदत कभी नहीं पड़ेगी। हमारी संस्कृति, हमारी अपब्रिंगिंग, फैमिली वैल्यूज, इंडियन कल्चर, आप देखोगे तो दुनिया भर में आज माना जा रहा है, दुनिया भर में लोग, people are getting aware of it and saying India is the country to follow. India is the epicenter of everything good that is happening. We will be the guardians for our own health, for our own city, for our own country. I think it will make the difference. I give my assurance to Swamiji here and to all the organizer that as head of the
NCC organization of this state, I will do whatever it is to be done to ensure that our people spread this word of the menace. The NCC will spread this word of this menace, how to control it, and we will leverage it for the mankind. We will do what is required to be done through my group headquarters and the NCC units, whichever are there. Wherever you are doing this good work, we will like to join with you so that we control this problem, this cancer of drugs. बंबई में हमने 3,500 पान टपरी की दुकानों को बुलडोजर तोड़ दिया, क्योंकि जो पान टपरी की दुकानें हैं वो एक इनडायरेक्ट मेजर सोर्स है जहां से ड्रग्स भी सप्लाई होती हैं। हमने केम हॉस्पिटल में युद्ध पाटली पे वॉर फुटिंग पे डी एडिक्शन सेंटर बनाया के बीच में जो एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो एजुकेशन है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसका बेस्ट सोल्यूशन है स्पिरिचुअलिज्म और योगा मेडिटेशन, इससे बेहतर इसका इलाज नहीं है। अगर कोई आदमी स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करे तो सब हॉस्पिटल बंद हो जाएं। लोग एम्बिशन के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, पावर के पीछे भागते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि 3 जो चीज़ें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनको अगर नहीं फॉलो करेंगे तो दुख ही पाएंगे और हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। So exercise, cultivating hobbies, creative thinking, creative writing, creativity of any form. All these are those pathways which will help you to achieve pleasure in a positive, productive way, which will make you evolve as a human being. स्वास्थ्य की शुरुआत भावात्मक स्तर से होती है और इसीलिए आजकल का मेडिकल साइंस लाइफस्टाइल डिजीज नाम से नई डिजीज को निकाल चुका है, जो कहता है कि लगभग सारी डिजीज शुरू ही लाइफस्टाइल डिजीज से हो रही है, चाहे वो डायबिटीज की समस्या हो या हार्ट की हो, आदि से ज्यादा बीमारियां लाइफस्टाइल के कारण है। उसको ठीक किया जाए, इमोशंस को ठीक किया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ABC जो इस आयाम का सबसे विशिष्ट चीज है, यूएसपी है, A फॉर अवेयरनेस, B फॉर ब्राइटर साइड और C फॉर कम्युनिटी बिल्डिंग। अणुव्रत जो छोटे छोटे व्रतों से व्यक्ति को बदलने का मार्ग है, उसमें इस 75वें वर्ष के दौरान अणुव्रत यात्रा के अंदर आपने जो ये ड्रग फ्री का, ड्रग प्रिवेंशन का जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, ये जन जन तक पहुंचे और हम संतों का, श्रावकों का पुरुषार्थ लगता रहे। इसी के साथ ओम अरहम। कि रियल हाई की हमें जरूरत है, वो सब्सटेंस से नहीं, वो सब्सटेंशियल हाई होना चाहिए। प्रोग्राम डज नॉट लास्ट लॉन्ग, बट द प्रोग्रामिंग विच विल बी डन इन द सबकॉन्शियस माइंड, इट विल स्टे विद अस फॉर एवर। वैसे ये 3 P पर ये आधारित प्रोग्राम है, प्लेज टू बी ड्रग फ्री, प्राउड टू बी ड्रग फ्री एंड प्रमोट अदर्स टू बी ड्रग फ्री। अगर जहर का इम्पैक्ट जानना है तो उसे चखने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार बच्चों से मेरी अपील है कि यदि हमें ड्रग्स के क्या परिणाम है उसको समझने के लिए उसे कंज्यूम करना आवश्यक नहीं है। काश हमें कोई समझाते, क्या करना है क्या नहीं करना है हमें भी बतलाते। कहते हैं वो उम्र नादान होती है, काश हमें कोई एलिवेट करवाते। सवाल जो मन में थे उन्हें सुलझाते, जो बात पेरेंट्स और टीचर को नहीं कह पाए वो किसी को तो कह पाते। कुछ बनने की उस उम्र में ड्रग में न खोते, काश हमें भी कोई एलिवेट करवाते। ड्रग कूल नहीं है, किलर है, कोई तो बताते। बिना डांटे कोई हमें समझाते, भविष्य की नींव को मजबूत कराते। काश कोई हमें एलिवेट करवाते। शायद अब वो जो इस पूरे जंजाल में बह चुके हैं वो ये सोच रहे हैं, एक प्रयास था एलिवेट कि अब जो जनरेशन ड्रग के चुंगल में आ सकती है उन्हें रोका जाए। न केवल ये बॉम्बे का क्षेत्र, अभी तो भारत और विश्व तक इस गूंज को पहुंचाकर हम इस नशे की लत को दूर करने में सलक्ष्य प्रयास कर सकेंगे। अणुव्रत विश्व भारती और हम सब लोगों ने मिलकर के अब तक मुंबई में हमारे 50 से ज्यादा स्कूल के अंदर हम लोग कैंपेन कर चुके हैं। हमारे 400 से ज्यादा वॉलेंटियर इसमें बन चुके हैं और कदम से कदम मिला के हम लोग सब आगे चल रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का, इस कैंपेन का उद्देश्य है
एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, जिसके अंडर ये सारे जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जितने एनजीओज हैं, जितनी और इंडिविजुअल्स हैं, उनको एक अम्ब्रेला में लाया जाए ताकि इस कैंपेन को हम एक इफेक्टिव तरीके से आगे ले जा सकें। और हमको सानिध्य मिले आचार्य महाश्रमण जी का। इनके सानिध्य से जब तक जनता में पूरा आह्वान नहीं जाएगा और इन धर्म के हिसाब से ही ये व्यसन मुक्त समाज बन सकता है। ये पूरे हिंदुस्तान में हम लोग इसमें लगे हुए हैं। आप सभी लोग बोले, हम प्रतिज्ञा करते हैं कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं करेंगे और जितना संभव होगा अपने आसपास के लोगों में ड्रग्स का सेवन न करने का एक प्रचार करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। ठीक है। नशे से दूर रहना भाई, नशे से दूर रहना भाई, सुबह शाम बस बोलो साईं, नशे से दूर रहना भाई, नशे से दूर रहना भाई, नशे से दूर रहना भाई। नशा जिंदगी उजाड़ देता है, नशा हर खुशी उखाड़ देता है। अरे लुट जाती है, मिट जाती है जिंदगी बसी बसाई। नशे से दूर रहना भाई, नशे से दूर रहना भाई, नशे से दूर रहना भाई, नशे से दूर रहना भाई।